बाकी मैं क्लास के गोवा कनेक्ट अच्छा मुश्किल ओके हेलो अस्सलाम वालेकुम मैं करता हूँ शेयर स्क्रीन हाँ तो कुछ कह रहा था कि 1 मिनट लगेगा इसका ओके हाँ तो हम क्या कर रहे थे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था वीक टोपोलॉजी वीक कन्वर्जेंस वीक स्टार कन्वर्जेंस तो मैंने कहा था जैसे तो अगर x है तो we see a sequence x n side मतलब of course x is a normal linear space xn is a sequence inside x we say xn converges weakly यहाँ हम w के छोटा सा लिख देते हैं to x belonging to x if x star at xn converges to x star at x for all x star belonging to x star. So this is weak convergence. It's convergence basically under weak topology, जिसकी हमने इससे पहले भी बात की थी. So of course, फिर हमने कहा था कि अगर xn converges to x, that means अगर norm convergence है, this is called normal norm convergence. जब ना strong convergence जिसको कहेंगे, convergence in norm. It implies that xn converges weakly to x. The converse is not true, उसकी हमने example की. And a weak convergence does not imply strong convergence, norm convergence. इसी तरह से x star अगर मैं लूं, I say a sequence in x star, xn star, inside x star, we say xn star converges to some x star under weak star topology. Weak star topology belonging to x star if xn, sorry, rubber. If xn star at x converges to x star at x, वो मैंने गलत लिख दिया शायद, हाँ ठीक है. This converges weakly if this happens for all x belonging to x. Actually मतलब ये vectors की convergence है in terms of these are numbers, these are scalars. Star जब किसी चीज पे लगे तो वो because stars x star is a function, any x star is a function from x to k. So x star at x would be some number. So this is weak star convergence. This is convergence. और मैंने ये भी कहा था कि फिर हमने एग्जाम्पल की थी कि वीक स्टार कन्वर्जेंस implies weak convergence, but the converse is not true. ये भी दिखाया था हमने. ओके चलो ये तो पुराना हिसाब है. फिर हमें करना था, मैंने कहा था L1 एक स्पेस ऐसी, हमने सेपरेबिलिटी को किया था, राइट. Let me write it down like this. मैंने शुरुआत ही की थी शायद. An example of a Banach space X such that all three modes of convergence in X star are distinct. Distinct का मतलब ऐसी स्पेस जिसमें weak star convergence does not imply weak convergence and weak convergence does not imply convergence, मतलब तीनों अलग है. तो वो जो एग्जाम्पल है
तो वो है L1 summable sequences. Now let x be equal to L1. Okay, let x be equal to L1, then we know that L1 double जो है या x star यानी L1 star is equal to L infinity. अब हम दिखाएंगे जो L infinity है इसमें जो weak convergence does not imply convergence and weak star convergence does not imply weak convergence. So that would be हमारा काम होगा. Well, consider this sequence. Consider the En in this L infinity bounded sequences where En of course is equal to the sequence 0 0 to 0 1 0 so on and so forth, where this 1 is at the nth place. अगर मैं इस सीक्वेंस को लूं so clearly इसका जो sup norm है वो 1 है, which implies, now this is true for all n greater than or equal to 1, which implies that En does not converge, normal convergence does not converge to 0 under norm, but हम दिखाएंगे but we show that ये converge नहीं कर रही है, but we show that En converges weakly to 0. उसका मतलब होगा weak convergence does not imply convergence. weak convergence तो है लेकिन convergence नहीं है. ठीक है ना? ठीक है? Now assume to the contrary. अब मैं कहूँगा suppose ये converge नहीं करता. Assume to the contrary, En does not converge weakly to 0. तो अगर ऐसा है then there exists a positive number, then there exists positive integers, that we call it n sub 1 less than n sub 2 less than so on and so forth, and some delta positive, such that f of e sub nj is greater than or equal to delta, which is strictly positive for all j runs from 1 2 so on and so forth. देखो हम कह रहे हैं कि ये कन्वर्जन नहीं कर रही है 0 को, मतलब that means of course मुझे ये लिखना चाहिए, मैंने क्या लिखा, मुझे जरा मैंने पीछे लिखा है, मैं एक स्टेप भूल गया इसको, वही मैं सोच रहा था ना, मैंने लिखा ही नहीं f क्या है. ओके लेट्स रब इट. ओके अब मैं क्या कह रहा हूँ, चलो मैं फिर से लिखता हूँ. अब मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ सपोज xn या मेरा En जो है ये does not converge weakly to 0. It implies that अगर ऐसा है so there exists some f belonging to L infinity star, dual में कोई चीज है, such that f of En does not converge to the normal convergence, या मैं चलो ऐसे लिखता हूँ does not converge to f of 0 that is equal to 0, because weak convergence अगर होती तो उसका मतलब है f of En converges to f of 0 for all f belonging to x star, in this case L infinity star, क्योंकि हमारा x जो है वो L infinity है. Okay, so अगर ऐसा है hence I can find a subsequence, कहने का मतलब there exists positive integers n sub 1 less than n sub 2 and a delta positive such that f of Eng is greater than or equal to delta which is positive. कहने का मतलब ये है कि अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्ज नहीं करती क्या बोलते हैं 0 को, then you can find a subsequence of that sequence
विच ये नंबर्स हैं विच आर पॉजिटिव। क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं ढूंढ सकते कि एक सब सीक्वेंस जो सारी की सारी पॉजिटिव हो, यानी वो जीरो की तरफ जा रही है मॉडुलस में, देन इट मस्ट कन्वर्ज टू जीरो। यानी यू कैन ऑलवेज फाइंड मतलब सब सीक्वेंस, जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि अगर a sequence that is not converging to zero, यहाँ पे नंबर है, यहाँ पे नंबर है, यहाँ पे कोई और नंबर है, whatever, तो अगर वो जीरो को कन्वर्ज नहीं करते, then you can surely find infinitely many terms around here which are away from zero, मतलब which are positive. So वही हमने बता दिया, which are greater than equal to delta, which is positive. Now what I do now, for m equal to 1 2, I define a sequence x sub m to be signum of this number f of en1 multiplied by vector en1 plus so on and so forth up to signum of f of en sub m multiplied by en sub m. मैंने इसी सब सीक्वेंस की मदद से एक वेक्टर खड़ा किया. Now signum of something is, what is signum? Signum is a function. It is equal to mod x by x. ठीक है ना? सिग्नम ऑफ एक्स इसके बराबर होता है, यानी इसका मॉडुलस जो होगा वो ऑफ कोर्स हमेशा 1 होगा, एंड ऑफ कोर्स इट इज नॉट डिफाइंड एज 0. इट assumes only two values plus minus 1 depending upon whether x is positive or negative. Okay, अगर ये है, then for each m अगर मैं इसका सुप नॉर्म लूं, सुप नॉर्म होता है जिस स्पेस में ये रहती है तो इट शुड बी सुप्रीमम, है ना? ऑफ कोर्स इसकी जो स्केलर्स है मैं लिख सकता हूँ एफ ई एन आई, सॉरी कहाँ गया रबर चाहिए मुझे, should be supremum of signum f of e and I, right? इसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं, एक्चुअली इसके कंपोनेंट्स ये, चलो डजंट मैटर, इन सभी का हम देंगे where I runs between 1 and m, which we know is equal to 1, no issue. ठीक है? ओके, इसका सुप नॉर्म 1 है फॉर सब, मतलब इट्स which implies that ये जो xm हमने बनाई is a bounded sequence. But अगर मैं f of x है, हाँ, 1 देखो ना तुम ऐसे, लेट मी शो यू. देखो पहले मैं दूंगा व्हाट इज x1, मतलब बेटर है मैं x1 इज जस्ट सिग्नम f ऑफ, एक्चुअली चलो मैं इसको थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ, लेट मी राइट इट लाइक दिस. चलो पहले इसका, चलो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, वैसे क्लियर हो जाएगा ऐसे, मतलब इसको एक स्टेप एक्स्ट्रा करते हैं. यानी मैं लिखूंगा नॉर्म ऑफ, क्या होगा, इट वुड बी नॉर्म ऑफ सिग्नम f e n 1 en1 plus so on and so forth, right? प्लस क्या होगा वो, प्लस वट वगैरह वगैरह, क्या है, सिग्नम ऑफ f of e n m मल्टीप्लाइड बाय दिस. ठीक है, इसका सुप नॉर्म, राइट? नाउ जैसा कि हमें पता है इट वुड बी, मुझे ऐसे करना पड़ेगा, नो इट वुड बी लेस देन इक्वल टू, क्योंकि अगर मैं अब इसको ब्रेक करता हूं, क्योंकि पहले वाले में तो 1 होगा, नो इशू, अगर ना पहली टर्म में लूं तो 1 होगा, लेकिन जब x2 होगा क्योंकि उसमें 2 टर्म्स आएंगी, तो इट शुड बी लेस देन इक्वल टू सिग्नम ऑफ f e n I जो कि 1 होगा इनटू नॉर्म ऑफ e n सब 1 इंफिनिटी प्लस इसी तरह से मॉड ऑफ सिग्नम ऑफ, ये मॉड है क्योंकि ये नंबर्स हैं, f of e n sub m, okay, into norm of e n m, and you remember these are unit vectors, जो ना e's है, ये उसी की एक सब सीक्वेंस है ना. सो इनका नॉर्म तो इन्फिनिटी नॉर्म 1 है और ये भी 1 है, और हमें लेना है, हाँ मैं क्या कर रहा हूँ,
जस्ट मिनट, मुझे जरा इसको ठीक से देखना पड़ेगा। आई हैव टू टेक द सुप नॉर्म। मैंने गलत किया, वन ही था एक्चुअली। इसको हम ऐसे देखते हैं। लेट मी राइट, मैं यहाँ रब करता हूँ। देखो इसका मतलब क्या है, मेरी जो सीक्वेंस होती है ना, सीक्वेंस इस तरह से होती है, x इज इक्वल टू x1 x2 so on and so forth। और नॉर्म ऑफ x क्या होता है, इट इज सुप्रीमम ऑफ i ग्रेटर देन इक्वल टू 1 xi। ये ना मेरा सुपनॉर्म, हाँ ये सुपनॉर्म। अब मुझे वही सुपनॉर्म यहाँ पे लगाना है। तो ये कौन सी सीक्वेंस है, ये वो सीक्वेंस है जिसके मतलब सभी टर्म 0 है, लेकिन यहाँ पे कोई नंबर है n1, मतलब n1th कोऑर्डिनेट, वहां पे इसका कंपोनेंट है सिग्नम f ऑफ en। इसी तरह से कहीं और पे है n2, बिकॉज n1 n2 इज अ सब सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर्स। इसी तरह से n2 कहीं पर है, वहां बाकी हर जगह 0 है, इट इज सिग्नम f ऑफ en2। इसी तरह से इसके कंपोनेंट्स है ये, लेकिन सिर्फ इन जगहों पे, बाकी हर जगह 0 है। तभी तो ये बनेगा ना इस टाइप का वेक्टर, बिकॉज वेक्टर मीन्स इसके कंपोनेंट्स ये है, मतलब E1 कंपोनेंट ये है, E2 इसका E1 कंपोनेंट ये है, इसका E2 कंपोनेंट है। लेकिन जब वो मेंशन नहीं हो, इसका मतलब बाकी कंपोनेंट 0 है। इसमें इतने ही कंपोनेंट्स हैं, बाकी हर जगह 0 है। तो इसी तरह से कहीं पे होगा इसका सिग्नम f ऑफ ENM। अब इसके कंपोनेंट जो सारे के सारे हैं, उनका जो मॉडुलस है वो 1 है। सो देयरफॉर जब मैं उसको सुप्रीमम लूंगा तो 1 ही होगा। तो ये मैं यहाँ रख करता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ xm का जो सुप नॉर्म है वो 1 है फॉर ऑल m ग्रेटर देन इक्वल टू 1। दैट इज, इसका मतलब ये भी है xm इज अ बाउंडेड सीक्वेंस। बट अगर मैं देखूं व्हाट इज f ऑफ xm, f ऑफ xm होगा, क्योंकि f लीनियर है तो स्केलर बाहर आएगा, इट वुड बी सिग्नम ऑफ f ऑफ en1 इंटू f ऑफ, ये सिग्नम ऑफ दिस है, ये नंबर है, ये बाहर चला गया, en1 प्लस इसी तरह से सिग्नम एज अ नंबर ऑफ f ऑफ en सब m, ये नंबर है, इसको मैं इसीलिए ब्रेसेस में डाल रहा हूँ, इंटू f ऑफ enm। राइट, अब अगर मैं देखूं ना सिग्नम ऑफ f ऑफ en क्या होगा, मल्टीप्लाइड बाय f ऑफ en1। सिग्नम अगर मैं इसको x के साथ मल्टीप्लाई करूं तो क्या मुझे मिलेगा, मॉड x, है ना। इट्स लाइक सिग्नम ऑफ समथिंग मल्टीप्लाइड बाय सेम थिंग just gives us mod of that number. So it is just mod of f of en1 plus so on and so forth up to mod of f of enm। और मैंने कहा ये सभी के सभी ग्रेटर देन इक्वल टू डेल्टा है, इट मीन्स दे आर ग्रेटर देन इक्वल टू डेल्टा। और है कितने टोटल, n1 n2 है ना, m है, they are m total, n1 n2 up to nm। so which of course would go to infinity as m approaches infinity। अगर m अप्रोच करेगा infinity और ये जो f of xm ये उससे बड़ा है, तो इसका मतलब ये f of xm would approach to infinity। so what does that mean, that's a contradiction। so I've got a bounded number, bounded sequence, right, which is less than equal to, which is equal to 1, which is less than say 2, है ना, it's a bounded sequence। but f of xm जो है वो bounded नहीं है, मतलब it approaches infinity। so therefore चूंकि bounded linear functional का ये एक property है कि अगर domain bounded है तो range bounded है, because f of x is always less than equal to k times। अगर यहाँ बाउंड आ गया तो इस पे भी बाउंड आ जाएगा, लेकिन यहाँ वो नहीं होता है, एक contradiction। therefore I can say en must converge weakly to 0 in L infinity। but it does not converge, of course we know it does not converge in norm, therefore weak convergence does not imply convergence। अब हम देखेंगे कि weak star convergence does not imply weak convergence। now consider
another sequence, let me call it A sub n in L infinity, where an is equal to 1 1 up to 1 फिर 0 0 0 इसमें n तक 1 1 है मतलब दिस इज द nth प्लेस मतलब a1 मेरे कहने का मतलब मेरी सीक्वेंस ऐसी है a1 इज 1 0 0 0 a2 इज 1 1 0 0 मतलब इसी तरह से a3 जो है एक और मतलब ये सभी बाउंडेड सीक्वेंसेस हैं दे आर इनसाइड एल इंफिनिटी ठीक है with one occurring मैं लिख सकता हूँ with one occurring only in first n places okay and let अब मैं a लेता हूँ जिसके सारे 1 1 है वो भी बाउंडेड तुम कनेक्टेड हो ना सभी ये बीच में बंद हो गया था यस सर ओके पता नहीं रिकॉर्डिंग का क्या हुआ ये बीच में अचानक से बंद हो गया था आर यू ऑल कनेक्टेड सो चलो मैं यस हाँ इरफान तुम अगर हो तो अटेंडेंस कर लेना तो मैंने कहा मैंने एक सीक्वेंस ली ए एन वो इस तरह की है मतलब जो मैंने अभी बोला था एंड ए को मैंने लिया जिसके सभी वंस हैं ऑफ कोर्स दे आर ऑल बाउंडेड सीक्वेंस है ना सो ए आल्सो बिलोंग्स टू एल इंफिनिटी ए एन आल्सो बिलोंग्स टू एल इंफिनिटी देन मैं दिखाऊंगा देन ए एन is not weakly convergent then we claim चलो दिखाते हैं an does not converge weakly does not ये क्रॉस का मतलब does not converge weakly to a for if now to see that let f belong to L infinity star such that f of x is equal to 0 for all x belongs to c sub 0 and f of a is not equal to 0 देखो मेरे कहने का मतलब जो है let me take this c0 c0 का मतलब है c0 है set of all sequences x1 x2 up to infinity xi belongs to k and xk is equal to 0 for all k greater than equal to n for some n greater than for some n belonging to natural number यानी ऐसी सीक्वेंसेस जो एक स्टेज के बाद 0 है तो इसका मतलब ये जो मेरी ए एन ऑफ कोर्स c0 is a subspace of L infinity actually c0 is a closed subspace of L infinity ये तुम एक्सरसाइज कर सकते हो मतलब इजी है प्रूव करना ऐसा है नहीं तो c0 is a closed subspace of L infinity ठीक है ना तो उसका मतलब ये हुआ we can always find by Hahn-Banach theorem चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ by Hahn-Banach theorem we can always find f belong to L infinity star such that f of x is equal to 0 for all x belongs to L infinity and f of a is equal to not equal to 0 for a not belonging to L infinity. This is Hahn-Banach theorem. तो यहाँ पे मैं लिखूंगा such f exists because of क्योंकि a does not belong ये जो a है ना इसके infinitely many non-zero terms हैं because of Hahn-Banach theorem as C0 is a closed subspace of L. वो एक हमने की थी consequence of Hahn-Banach theorem. तो let f belong to L infinity star such that this happens. ठीक है ना f of a does not belong to C0 तो f of a would be 0. So which implies that f of an is equal to 0 for all
an for all n greater than equal to 1 because an is a sequence that is contained in C0 and f of a is not equal to 0. सर बीच में आवाज ही काट हो Which implies that I hope मेरी आवाज which implies that f of an does not converge to f of a. So hence क्योंकि अगर ये वीकली कन्वर्ज करती तो हर एक फंक्शनल के लिए f of an would converge to f of a. So hence an does not converge weakly to a. लेकिन हम दिखाएंगे it would converge under weak star topology and a weak star does not imply weak convergence in L1. Okay. However, an converges to a under weak star topology. तो वो हमें दिखाना होगा. Now because वो कैसे? Now for each you have to remember L infinity जो हमारी स्पेस है जहां पे ये बिलोंग करते हैं L infinity is actually L1 star. सर इस यहाँ से रिपीट कीजिए हाँ देखो सर यहाँ से हाँ यहाँ से f of an f f of of an an is equal to 0 हाँ जी क्योंकि सर because an are inside C0 and C0 is a closed subspace of L infinity तो एक फंक्शनल ऐसा है जो क्लोज स्पेस को मारेगा और बाहर का जो वेक्टर है उसको नॉन जीरो रखेगा और चूंकि a ठीक है है बाहर आउटसाइड C0 तो इसका मतलब ये सारे के सारे जीरो है और f of a जीरो नहीं है तो ऑफ कोर्स इट वोंट कन्वर्ज टू f of a क्योंकि ये नॉन जीरो है ये सारे जीरो है तो अगर ये नहीं ठीक सर कन्वर्ज करता फॉर एनी f इसका मतलब an does not converge weakly to a अब हम दिखाएंगे लेकिन ये वीक स्टार कन्वर्ज करेंगे which would mean that weak star convergence does not imply weak convergence in this space. अब हमने क्या कहा कि हमने कहा वो we claim however हम ये साबित करेंगे an does converge to a under weak star topology. Okay, so let us see. Okay, ये हमने किया. Now we know for f belonging to L1 star there exists a void belonging to L infinity such that f of x जिसको मैं लिखता था फिर f sub y of x जब हमने डुअल्स की बात की थी is equal to summation xj yj j runs from 1 to infinity for all x equal to xj j runs from 1 to infinity which belongs to of course L1 और हमारा जो y है L infinity में ठीक है ना तो what does that mean I hope now hence मेरे कहने का मतलब है corresponding to anything ये जो an है ना an यहाँ पे है L infinity में corresponding to everything here there exists a functional this fy यानी corresponding to an there exists an fan which acts like this so इसका मतलब हुआ fan of x जो होगा वो होगा summation j runs from 1 to n infinity xj into 1 है ना इसमें n ones हैं बाकी सारे zeros हैं यानी that would be a n में लिखूं an से ही नहीं होगा लेकिन an I से ही होगा that would be just क्योंकि यहाँ 1 है n times बाकी सारे 0 है j runs from 1 to n xj and f of ax जो होगा वो होगा simply अब सारे 1 है that would be just this thing which implies that f an of x converges to fa of x for all x belonging to L1 or right L1 है ना जिसका मतलब है f of an converges in weak star manner to f of a और ये एक्चुअली दूसरा नाम है that is an converges in weak star topology to a क्योंकि जब मैं कह रहा हूं ना ये वीक स्टार टोपोलॉजी में कन्वर्ज करने का मेरा मतलब यही है आई होप दैट इज क्लियर थोड़ा सा इसमें ट्विस्टेड है बट यू हैव टू बेयर
अब सीखना है तो क्या करें? सो कहाँ पे ये कन्वर्ज होता है? इन of course L infinity, but actually है ये L1 star. L infinity is the same as L1 star. Okay, तो ये खत्म हो गया थोड़ा सा. So इसमें हमें एग्जांपल मिल गई कि weak star convergence does not imply weak convergence and weak convergence need not imply convergence. इसके बाद हमें करना है ओके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम जिसको हम कहते हैं ओपन मैपिंग थ्योरम. नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम. मैंने बोला था 3 इंपॉर्टेंट थ्योरम है फंक्शन एनालिसिस में. उसमें से एक तो हमने किया, दैट वाज हान-बनाक थ्योरम. ये दूसरा है. दूसरा ये है, तीसरा है यूनिफॉर्म बाउंडेडनेस प्रिंसिपल. तो इसकी स्टेटमेंट अगर मैं लिखूं वो ये है कि इफ x एंड y आर बानाक स्पेसेस. अब मैं बानाक को एम्फसाइज करूंगा क्योंकि अगर एक नॉर्मल लीनियर स्पेस हुई यानी कंप्लीट नहीं है तो ये थ्योरम ट्रू नहीं है. एंड इफ t is a continuous linear transformation, is a continuous यानी it is continuous and linear, मतलब bounded linear map, linear transformation of x. अब यहाँ पे एक और चीज में करूंगा एम्फसाइज, वो है ऑन टू. यानी इट हैज टू बी कंटिन्यूअस, लीनियर एंड सर्जेक्टिव. यानी ये ऑन टू मैप है, ये भी जरूरी है. ऑन टू y, then t is an open mapping. t is an open mapping. ओपन मैपिंग का मतलब यानी अगर O inside X is an open set, में भी होगा. T of A जो है, इसकी इमेज जो है inside Y is also an open set. इसको बोलेंगे ओपन मैपिंग. यानी अगर सर्जेक्टिव कंटिन्यूअस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है between two Banach spaces, it must send open sets to open sets. Hence, अब मैं ये भी लिख सकता हूँ, if in addition अगर ये 1-1 मैप भी हुआ, T is 1-1, तो ये बाइजेक्शन हो जाएगी ना. जी. तो then T is a homeomorphism. अगर ये 1-1 हो गई बाइजेक्शन तो T इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा. तो अब चूंकि अगर TO ओपन है तो T ओपन है, उसका मतलब T इनवर्स ऑफ TO which is equal to O is open, है ना. If T of O is open, which means T inverse is continuous. उसका मतलब T is a homeomorphism. It is both sides continuous. So इसके लिए हमें पहले करना होगा लेमा. लेमा ही मेन है, बाकी तो मतलब उसमें आ जाता है, मतलब ना उससे एम्प्लॉय हो जाता है theorem. For the proof of the theorem, we need the following lemma. और लेमा ये है, चलो लेमा को स्टेट करते हैं. मुझे लगता है अभी 4, चलो देखते हैं कब तक पहुंचते हैं. लेट x एंड y भी फिर से वही है, बानाक स्पेसिस. मतलब हमारी जो एजम्पशंस है वो यही है, बानाक स्पेसिस. एंड t is a continuous linear transformation of x onto y. मतलब हाइपोथेसिस यही है. Then the image of each open sphere, each open ball, I should say, centered at origin in X contains an open ball centered at origin in Y. Centered at origin in Y. मेरे कहने का मतलब है अगर X में मैं लेता हूं ये सेट B,
मैंने s लिखा है, doesn't matter, s sub r, that means all vectors unit मतलब x belonging to x such that norm of x is less than r. This is Hmm. unit ball Open space. centered at origin of radius r. तो अगर मैं इसकी Hmm. image, it would contain some, let us call it sr dash, मतलब it would contain some open ball in y such that, मतलब which is centered at origin, मतलब ऐसा SR जो है इमेज ओपन बॉल सेंटर्ड एट, क्या बोलते हैं इसको, origin in the domain, उसकी image would always contain some open. पहली बात तो ये है ना कि एक चीज तो साफ है कि origin goes to origin, है ना. अब मैं ये कह रहा हूँ कि Yes, यहाँ sir. पे कोई भी बॉल लो, यूनिट बॉल, there would be something here which would be mapped inside this. origin तो हमेशा लीनियर मैपिंग का origin पे जाता ही है, लेकिन हम कह रहे हैं अगर x and y बानाक स्पेसेस हैं और t on to मैप है, then you can always, अगर मैं उस t of 0 पे यहाँ पे 0 पे कुछ बॉल बनाता हूँ, तो ये सिर्फ origin इसके अंदर नहीं होगा, बिल्कुल एक वहाँ यूनिट बॉल आ जाएगी ना उसकी. पहले तो ये है कि यूनिट बॉल का इमेज होगा कुछ ऐसा वैसा, ये जरूरी नहीं ना, इट मस्ट जी सर. स्ट्रक्चर, लेकिन हम कह रहे हैं कि उसके अंदर एक हमेशा बॉल होगी सेंटर्ड एट origin. ऑफ कोर्स origin would go to origin. और ये मान लो इमेज है इस बॉल की, तो हम कह रहे हैं कि इसकी इमेज टेढ़ी मेढ़ी जो भी हो, नीड कुड बी एनी सेट ऑफ वेक्टर्स, बट इट वुड कंटेन अ बॉल सेंटर्ड एट द origin. सो अगर हमने ये कर लिया तो वी आर, फिर प्रूफ ऑफ द थ्योरम इज नॉट डिफिकल्ट. सो अभी 1 मिनट कुछ है तो देखते हैं कहाँ पहुंचेंगे. प्रूफ ऑफ द लेमन. तो इसको करने के लिए अब चूंकि मैंने नोटेशन यही ली है, तो पता नहीं तुम्हारे नोट्स में भी शायद ही होगी. x belongs to x, norm x is less than r. It is unit ball. It is a ball cent of radius r centered at origin inside x, and sr dash be equal to all x belonging to x. Sorry, the norm of y is less than r dash. So r, let these be open balls centered at origin in x and y respectively. ये भी बंद होगा, तुम फिर से ज्वाइन करोगे. ओके, देन t of sr is equal to t of r times s1, which is nothing but r of t of s1.